According to. Okay. So this is our first question. It says two APs have the same common difference. We are having two APs and their common differences are same. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. Then the difference between their fourth term will be. So first of all, let us understand what they are talking here. They're talking about that we are having two APs. So you can write on AP1 and then we have the other AP which is AP, let's say 2. Now it says that they have the same common difference. That means let's say that if AP first common difference is also D and AP second common difference is also D only. It says the first term of one of these, meaning let's say the first one. So that is given, the first term is given -1. So I can write on A1 is -1. Now, for the second term, like for the second AP, the first term is given -8. So I'm not writing A1 because of course it will be same. So I'm using now B1. B1 is representing here the first term only, which is -8. Now, we have to find out the difference between their fourth term. That means we have to find out the difference between A4 minus B4. This is what we have to find out. Have you understood the question properly, Mani? Yes. ठीक है, यहाँ तक clear है? Now we have to find this only. So let's find out. So A4 meaning AN. AN का formula क्या था? AN का formula? AN equal A plus. Are you there? Hello? I can't hear you. One second, Manya. I think I got disconnected from my another device. I'm joining. Okay, I think now I'm audible, right? Yes. Yes. Okay. So the formula was AN is equal to A plus N minus 1 into D. So what will be A4? A4 will be A1 plus the A1 is the first term. N minus 1, which is of course 4 minus 1 into D. D is the same. Common difference we have same, right? So D will be as it is. So this is your A4. Now we have to find out minus B4. So minus, what will be B4? Formula, using the formula, it will become B1 plus N minus 1. That means again 4 minus 1 into the common difference, which is D only. And now let's simplify this. So this will become A1 is given -1. So we can write on -1 here. 4 minus 1 is 3. So 3 into D. Minus B1 is given -8. So let's write on -8. And then plus 4 minus 1 is 3. So 3D. Now, if you simplify this, if you remove the bracket, it will become -1 plus 3D. Minus minus plus 8. And then minus plus minus, because you're removing the bracket and you're having negative sign outside the bracket. It's minus D. Now, of course, this plus D and minus 3D will get cancelled. So what is the answer? -1 plus 8, which is, of course, 7. So the answer is 7. Clear, Manya? You are having your notebook with you, so you can also write down all the steps along with me only, so that you will have the like you can do the proper practice. Yes. Let's Yes. go to the next question now. So the next question is on, let's check. The next question is very simple. It is on, of course, you can see here.
I'll just remove this here. So the next question is you have to find out the number of zeros. This is very simple. Manya, tell me. We had understood this, how to find the number of zeros from the graph. So what will be the answer? We had done this. How can we, just by looking at the graph, how can we find out the number of zeros? I think 1. So at how many points the graph is cutting the x-axis? Only at 1 point. So you can say 1 0 and the 0 is, okay. So here, whatever is the value of x, right? So here remember that, that this 3 comma 0 which is written, 3 comma 0, in this 3 is representing the x coordinate and y is representing the 0 coordinate, okay, or 0 is representing the y coordinate. So 1 0 and whatever is the value here first, that is actually the value of you can say the 0, okay. So you can say 1 0 and the 0 is nothing but the first one. Suppose this graph is cutting here, let's say. So then again, what will you say? That the graph will have two zeros, two zeros, that means 3 and -2. So you just have to check that at x, at what point it is cutting the x-axis, that will also be your zeros. Got it? Is it clear, Manya? Yes. Okay. Now next question, instead of pasting it here, I'm going to directly write it down because if I'll just copy and paste, it will take time. So I'll write down the next question. So the next question is on trigonometry, and it says sine theta is given a by b. You have to find out cos theta. This is very simple question. There are options also given, Manya, but I'm not showing you the options. We can directly just solve it. Any idea how can you solve this? You remember the famous trigonometric identity? What was the famous trigonometric identity which was including sine and cos both? Sine square theta plus cos square theta equals 1. This was the famous trigonometric identity, right? A very famous, I would say. Now Yes. tell me, what is sine theta given in the question? A by b. So what A will be by sine square theta? Will it not become a by b whole square? That means a square and then b square. So it's a square by b square plus cos square theta. Of course, we have to find out cos theta. So we can write on cos square theta as it is. Now, of course, keeping cos square, you can also write it down, Manya. You can open your notebook and along with me write it. Because you will not then you'll not have the practice of writing the questions. So that is my main intention. For this class or in this class, I just want you to write things so that you will have the habit of writing in your board exam after 2 days, right? Your exam is after 2 days only. So you should have a practice of writing the questions. So cos square theta will become 1 minus, of course, a square by b square because we have shifted it to this side. Now, if you take LCM here, what will this become? It will become b square and this will become b square minus a square, right? So what is the value of cos square theta? Cos square theta is this. So what is the value of cos theta? Will it not become root over b square minus a square upon b square? Yahan pe Manya, if you want, you can also take the square and root, like cancel from the denominator, and you can just write down root over b square minus a square upon b. I'm going to show you the entire solution once again. So if you want, you can write it also. So now you do one thing, you start solving the questions along with me only so that you can be together, okay? And I will be solving questions, Manya, but at the same time, if you feel like, okay, you have not understood anything, so you can stop me, okay? So if you are not saying anything, that means I will understand that you are understanding everything, okay? If you don't understand anything, you can. Yeah, okay, perfect. So now let's start with the next question. Sec A plus tan A times 1 minus sin A
is equal to what? You have to simplify this. So let's see how can we solve this. Now you can start together with me. Yes. Okay. So the very first thing that you will do is you will multiply this sec A with the 1 minus sin A, the complete thing. It's like a distributive property. So sec A we will multiply with the complete term 1 minus sin A, and then this plus tan A you will multiply with again 1 minus sin A. I hope you know that this is called a distributive property. See, if you have A plus B into C plus D, we can also write down this as A times C plus D plus B times C plus D. This is called distributive property. So using that property, I have written the first step here. Okay, now let's multiply this. So what is sec A into 1? It will become sec A. What is sec A into sin A? Minus sign as it is. So it will become sec A sin A plus tan A into 1. It will become tan A. And then plus into minus is minus, tan A into sin A, tan A into sin. That's it. Now, let us simplify this. So I'm going to write down here sec A as 1 upon cos A. Just write down everything here in terms of sine and cos. So sec A will become 1 upon cos A using the formula minus. Here sec A will become 1 upon cos A using the formula, and sine A will be as it is. Plus tan A will become, using the formula, sin A by cos A, right? Sin A by cos A. Minus, here tan A, I can write down simply as, you can say sin A by cos A using the formula, and then into sin A as it is. Is this step clear, Manu? सब मैंने सिर्फ फॉर्मूलाज यूज किया है, सबको कॉस और साइन के टर्म में फॉर्मूला में लिखा है. सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए में लिखा है, साइन को साइन रहने दिया, टैन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में लिखा है, एंड दैट्स इट, राइट? Yes. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, यहाँ पे आई एम राइटिंग 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज, और यहाँ पे कैन आई नॉट राइट डाउन 1 एंड देन साइन ए, तो जस्ट साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को आई एम गोइंग टू कीप इट एज इट इज. एंड देन यहाँ पे दिस विल बिकम साइन ए इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. यहाँ पे मानिए, इफ यू कैन नोटिस, this term and this term will get cancelled because similar term है और opposite signs है, minus और plus है, right? Agree? वो cancel होगा. Yes. So now what is left? We are left with 1 upon cos A minus sin square A upon cos A. माने जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें ट्रिग्नोमेट्री का, तो you just keep one thing in mind कि आप सिस्टम थोड़ा सिस्टम से सॉल्व करना, so that you can like it should not be like it's just not making any sense. Even if you're coming to the next step, it should be related to the last step. ठीक है, तो फिर Yes. और empty space तो रखना ही नहीं है, ये वाला तो आपको ट्रिक याद ही रखना है. ओके, ठीक है. नाउ यहाँ पे हमारे पास बच गया cos A और ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर. अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा. कैसे? वही उस फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से. cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है. दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. सो cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला मिल गया cos स्क्वायर ए. तो कैन आई नॉट राइट डाउन हियर cos स्क्वायर ए अपॉन cos A as it is. अभी cos स्क्वायर A को कैन आई नॉट राइट डाउन cos A into cos A. जितना आप सिंप्लीफाई करो इतना वो ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाई होते जाता है. फिर यहाँ पे ये cos A कैंसिल हो गया. सो नाउ यू हैव गॉट द फाइनल आंसर, द फाइनल करेक्ट आंसर, व्हिच इज cos A. टेल मी Manya, is this clear? Yes. Okay, sure, no doubt in this. No. Okay, now let's go to the next question. All the questions that I'm going to do today, all the questions are sample questions. They have these questions may come in the board exam.
Next question is given, if the perimeter and area of a circle, okay, if the perimeter and area of a circle are equal, this is given, then we have to find out the radius of the circle, okay? This is just a 1 mark question. Find the radius of a circle. I'll tell you, इसको बहुत ही easy way में हम solve कर सकते हैं. So पहले तो माने पता होना चाहिए कि perimeter of a circle, that means circumference यहाँ पे बात हो रहा है. तो circumference of a circle का formula क्या होता है और area of a circle का formula क्या होता है? You know what is perimeter of a circle formula? Perimeter और circumference का मतलब एक ही हुआ. So do not get confused. So I'm Okay. just writing here. I'll write down the formula. So it is given in the question that आप ये वाला question लिख लो साथ में, क्योंकि आप इस वाले question से ना माने आपके पास वो 2 formulas भी मिल जाएंगे. So question में दिया हुआ कि perimeter of circle जो है और वो area of circle जो है वो दोनों equal है, right? तो perimeter of circle का formula होता है 2 pi r, जिसको हम also बोलते हैं circumference of a circle. ये एक formula मिल गया, आप ये formula लिख लो कि अगर इन केस circumference of a circle या perimeter of a circle formula का यूज करना हुआ तो you should be knowing the formula 2 pi r. area of a circle का formula है pi r square. So ये हमारे क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में इक्वल है. फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है रेडियस, ये वाला r जो दिख रहा है. तभी हमारे पास तो यू नो लाइक कोई ऑप्शन नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू इज I will write down 2 pi r as it is. और यहाँ से मैं pi, so will it not become minus pi r square and then equals to 0? Yes. Of course. यहाँ से I can take something common क्योंकि मुझे r find करना है, radius, right? So क्या common ले सकती हूँ? So here we were talking about that pi is common, right? And also from r square, r is common. Here also r, and in this r square, 1 r you can take common. So what will you take common? You will take pi r common. Now when you will take pi r common, can you tell me what is left in the bracket? Pi r common. So from the first one, if you have taken pi r common, so only 2 is left. Yes, very good. So 2 is left, minus. From the second one, you have taken pi r common. So now what is left? Pi is outside only. From r square, you have taken 1 r common. So how many r is remaining? 1 r, right? Because it was r square. So उसमें से एक r बाहर है, एक अंदर होगा. Correct? Understood? Yes. Okay. So यहाँ पे you can see that आपके पास 2 terms आ गए, right? Pi r into 2 minus r equals 0. Let me tell you मान्या कि अगर हमारे पास कोई भी 2 वेरिएबल हो या 2 कुछ भी टर्म्स हो और उनका प्रोडक्ट 0 आता है, तो इसका मतलब ये होता है या तो फर्स्ट टर्म जो है वो 0 के इक्वल होगा और सेकेंड टर्म 0 के इक्वल होगा. तो ये एक रूल है. तो उस रूल के हिसाब से यू कैन राइट डाउन, this implies that either pi r will be equal to 0 or the second term which is 2 minus r will be equal to 0. और इससे हमें r का रेडियस लेकर ना r की वैल्यू मिल जाएगी. Now pi r is equal to 0 मान्या, r फाइंड करना है तो ऑफ कोर्स r को तो हम यहीं पे रखेंगे और pi को हम शिफ्ट करेंगे तो pi कहाँ हो जाएगा? डिवाइड होगा. बट 0 बाई एनी नंबर, ओके, एनी नंबर, बी इट इनफाइनाइट नंबर ऑल्सो, 0 की 0 ही होगा. सो r की वैल्यू क्या आई? 0 आई, मतलब रेडियस 0 आई. और दूसरे वाले केस में 2 माइनस आर इज इक्वल टू 0 में कैन वी नॉट राइट डाउन 2 इज इक्वल टू माइनस आर को अगर उधर शिफ्ट किया तो इट विल बिकम 0 प्लस आर, दैट मींस आर. तो हमारे पास r की 2 वैल्यूज आ रही है, या तो r 0 है या तो r 2 है. टेल मी मान्या, अगर रेडियस 0 होगा किसी सर्कल में तो क्या वो सर्कल बनेगा? नहीं बनेगा, राइट? सो यू कैन राइट डाउन, सिंस radius can never be equal to 0, therefore r value will be only 2 and that is your answer.
आर की वैल्यू जो है वो जीरो होने का क्या मतलब है कि जो हमारा सर्कल फॉर्म होता है तो ये आर ही जब जीरो होगा तो मतलब फिर वो सर्कल तो फॉर्म ही नहीं हुआ, राइट? सो दैट इज वाई जीरो वाला कंसिडर नहीं करेंगे एंड विल ओनली से द अदर वैल्यू ऑफ आर इज करेक्ट विच इज ट्रू। क्लियर है मान्या? ये Yes. समझ में आया आपको प्रॉपर? एनी डाउट? No. No doubt, right? Okay. Now let's go to the next question. Here I'm just going to write down one sequence. You have to just tell me whether it is an AP or not. And Manya, you can do this question. So -5, comma, -5/2, comma, 0, comma, 5/2, comma, dot, 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 is an AP or not? Is this sequence an AP in arithmetic progression or not? You check and you can let me know. What should be the answer? Just a second. Let me find. Yes. So to check whether whether a sequence is an AP or not, you just have to check the common difference. Common difference अगर constant आता है तो ये AP है. तो you just have to tell me कि ये AP होगा या नहीं. That's it. I'll be ready with the next question. You solve that question. तो यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और इतने में क्लियर हो जाएगा कि एपी है या नहीं बाय जस्ट चेकिंग a2 - a1 क्या आया है, a3 - a2 क्या आ रहा है, और a4 - a3 क्या है। ये तीनों अगर सेम आ गए सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सो योर सीक्वेंस इज इन एपी, और इनसे कोई भी अलग आया तो योर सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। सो पहला आपने क्या किया, a2 मतलब जो -5/2 है वो लिखेंगे, माइनस फॉर्मूला में है, एंड देन a1, बट a1 की वैल्यू है -5, तो इसको हम -5 फिर से लिखें, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो दिस विल बिकम -5/2 और माइनस माइनस प्लस। अब माने आप इसको एलसीएम ले सकते हो, टेक एलसीएम एंड आई एम डूइंग इट हियर। 2 होगा एलसीएम, सो ऊपर हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा 1 × 2 = 2, so 2 × 5 = 10। सो आंसर क्या आया, 10 - 5 इज, बिकॉज -5 + 10 सेम एज 10 - 5 विच इज 5/2। तो एक हमारा कॉमन डिफरेंस आया 5/2। अभी लेट्स चेक कि दूसरा भी 5/2 आ रहा है या नहीं। ये वाला स्टेप क्लियर है माने? Yes. ठीक है। सेकेंड में है a3 0 माइनस a2, माइनस तो फॉर्मूला में था और a2 भी माइनस, सो इट्स -5/2। ये तो बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया। 0 माइनस माइनस इज प्लस, सो 0 + 5/2 जो है वो 5/2 ही आ रहा है, तो ये दोनों तो सेम ही आ गया। अभी नाउ यू हैव टू जस्ट चेक a4 - a3। सो a4 क्या है, 5/2 है, माइनस a3 क्या है, 0 है। व्हाट इज 5/2 - 0? 5/2। तीनों कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, सो यू विल से यस दिस इज एन एपी। क्लियर माने? Yes. ठीक है, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अगेन a trigonometry question, and I remember we had done similar type of question. Do you remember that we had done similar type of question? I'll just Yes. remove these things. Yeah. So ये बहुत ही simple question है। tan a plus b जो है वो √3 है, और tan a minus b है 1/√3. Can you find out the value of a and b? Simple. Okay. So let's write down first given जो है tan of a plus b जो है वो √3 है। यहाँ पे माने you have to tell me tan a plus b एक जैसा है वैसा ही लिखेंगे, और √3 मतलब tan की कौन सी वैल्यू के लिए, लाइक tan की कौन सी एंगल के लिए वैल्यू जो है वो √3 होती है। आपको याद है वो वाला टेबल?
tan 60। सी मुझे तो याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया मान्या। आपने फॉर्मूलाज याद किए वो सारे फॉर्मूलाज? अगर याद नहीं भी किए तो वो वाला टेबल आपको क्विकली बना लेना होगा एग्जाम में, ताकि उसके उस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वो फॉर्मूला टेबल से देख के सारे वैल्यूज जल्दी जल्दी से पुट करके यू कैन सॉल्व। ठीक है, आज Okay. के एंड क्लास में मैं आपको एक बार फिर से वो फॉर्मूला लिखते कैसे रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्टेप क्लियर है मैंने कैसे लिखा? Yes. यस, √3 को मैंने लिखा है कि ऑफ कोर्स tan 60 की वैल्यू रूट होती है तो tan 60 लिख दिया। क्यों लिखा है? अभी अगेन आई विल रिमाइंड यू कि हम जो है ये कैंसिल नहीं करते हैं tan, राइट? लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आप ऐसे एग्जाम में कैंसिल मत करना, बिकॉज ये फिर से गलत इंप्रेशन हो जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं पता है कि कैंसिल नहीं होता है। बट आप ध्यान रखना कि एक्चुअली ये कैंसिल होके a+b = 60 हो जाता है। दोनों साइड से tan जो है वो लाइक हम लाइक बेसिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हम उड़ा देंगे tan को, दोनों tan को दोनों साइड से ही उड़ा देंगे। ओके, मान्य समझ में आया? तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई a+b की। अभी लेट्स टेक द सेकेंड वन, राइट? सेकेंड क्या गिवन है? tan a-b = 1/√3। फिर से वही करेंगे, tan a-b और 1/√3 के जगह पे कैन वी नॉट राइट डाउन tan 30? वी कैन राइट डाउन बिकॉज tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ पे tan 60 लिखा था बिकॉज tan 60 की वैल्यू √3 होती है। क्लियर है? फिर से वही बेसिक लैंग्वेज में tan को हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? a-b = 30। अभी मान्य, इफ यू नोटिस ये दो इक्वेशन हो चुके हैं। या तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऑफ कोर्स आई वुड एडवाइस यू कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इसको कभी सॉल्व मत करना, क्योंकि बहुत इजी है अगर हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करें। कैसे? a+b जो है वो 60 है और a-b जो है वो 30 है। टेल मी मान्या, क्या कैंसिल होगा इसमें? +b और -b, राइट? Yes. अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो ये +b और -b कैंसिल हो गया। a+a हो जाएगा 2a और 60 + 30 हो जाएगा 90। याद है ये वाला एलिमिनेशन मेथड हमने किया था, राइट? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो तो ये इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री में एलिमिनेशन भी अंदर है, यू हैव टू सॉल्व। सो यहाँ Yes. से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑफ कोर्स 90/2। 90/2 का क्या मतलब हुआ? 45। तो a की वैल्यू तो मिल गई हमारे पास, हमें a ही निकालना था और b भी निकालना था, राइट? अब ये a की वैल्यू 45 या तो मानिए यू कैन पुट इन इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2, किसी भी एक में पुट करके वी कैन फाइंड आउट। लेट्स पुट इट इन इक्वेशन 2 और लेट्स पुट इट इन इक्वेशन 1, दोनों से ही आंसर आ जाएगा मान्या। बट हम लाइक 1 में माइनस है ही नहीं तो थोड़ा इजी होगा तो हम 1 को ले लेते हैं। फ्रॉम 1 वी हैव a+b 60, राइट? तो a क्या है? 45 आया हमारे पास, तो हमारे पास b ऑफ कोर्स कितना सिंपल है फाइंड करना। कैसे? 60 - 45। 60 - 45 क्या होगा? 50। आ गया, b भी आ गया, a भी आ गया हमारे पास और b भी आ गया। क्लियर मान्य? समझ में आया आप? ठीक है, ओके। Yes. ये ज्यादा फास्ट था या फिर ये बहुत अच्छे से क्लियर है? It's clear. क्लियर, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। और जो नेक्स्ट है मान्या वो कंप्लीटली उस टेबल पे बेस्ड है। तो वो टेबल पहले लिख ले या फिर वो क्वेश्चन कर लेते हैं? मैं वो टेबल आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है? अभी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि वो टेबल में फिर टाइम चला जाएगा। पहले हम क्वेश्चंस जितना ज्यादा हो सकता है करते हैं, ओके? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x, और क्वेश्चन है 2 cos x²। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करा रही हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मान्या, तो आप भी साथ ही साथ या तो लिखते रहना या फिर ध्यान रखना बिल्कुल। प्लस x sin²
60 डिग्री, यही x हमें फाइंड करना है, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। सो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि सारे वैल्यूज तो हमें पता ही है और हमें x निकालना है। इट्स सो सिंपल, राइट? सो 2 cosec 30 की वैल्यू क्या है, याद है आपको? माने मुझे तो याद है वैल्यू, मैं चाह रही हूँ आप याद करके मुझे बताओ। cosec 30 जो है वो एग्जैक्टली sin 30 के वैल्यू का उल्टा हो रहा था, राइट? तो sin 30 की वैल्यू थी हाफ, तो cosec 30 हो जाएगा 2। सो आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। क्लियर है मानो? सी ये डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये सीधा मैंने टेबल से लिखा है, राइट? यस, Yes. ओके। x तो हमें फाइंड करना है, साइन स्क्वायर 60 साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, √3/2 का स्क्वायर, राइट? ऑफ कोर्स स्क्वायर है तो माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू थी 1/√3 एंड देन स्क्वायर जो है वो हमने ऐसे ही पुट किया इज इक्वल टू 10। अभी यू कैन नोटिस माना है कि सारे नंबर्स है और एक इक्वेशन है और हमें x फाइंड करना है, तो इट इज सो सिंपल, हम इसको सिंपली फाइंड कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी मान्या, व्हाट शुड आई डू इन द नेक्स्ट स्टेप? थिंक। I think 2 into 4 will be. Okay, so 2 will be 2 and 2 square is 4. So what is 4 into 2? Will it not become 8? 8. 8, okay, plus x will be as it is. Can you tell me what is √3/2 square? √3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, राइट? और 2 का yes स्क्वायर हो जाएगा 4, minus करेक्ट? माइनस 1 का स्क्वायर 1 will remain 1 and √3 will be only 3 and equals to 10. वेरी गुड। नेक्स्ट, Then 8 plus will be remain as it is. what is x into 3? Will it not become 3x? Upon 4. Yes, 3x upon 4. Okay, next, Minus 1 minus upon 1/3 equals 10. 10. अभी आई एडवाइस मान्या कि x वाले टर्म को तो अभी शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ना एक बार में हम सब शिफ्ट नहीं करते हैं, तो विल शिफ्ट x के अलावा और जितने टर्म्स है बाकी सबको नंबर्स के साइड। सो व्हाट शुड आई डू? चलिए, First we will shift 8. ओके, पहले तो मैं 10 लिख देती हूँ, ठीक है? और ये 8 को शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा -8, राइट? 8. और -1/3 को शिफ्ट किया तो +1/3, राइट? Yes. ओके, एंड अभी क्या होगा? इसके बाद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3x/4 को ऐसे रहने देते हैं, 10 - 8 क्या होगा? 2 2 प्लस plus 1/3। अभी मान्या अगेन हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यू टेल मी 2 + 1/3 का आंसर क्या होगा? First we will write 2 upon 1. ओके, Then we will write denominator will be 3. 3 as the LCM, then And 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, एंड देन जो जो भी नंबर आ रहा है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? 6. 6 minus 1. 1 second, it's 6 plus 1, Minus- right? Yes. प्लस है क्योंकि ओके, अभी क्या हो जाएगा? ये 3x/4 इज इक्वल टू 7/3, Yes. ठीक है? अभी x के साथ 2 एक्स्ट्रा टर्म है क्योंकि हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो पहले लेट्स डू वन थिंग, 4 को हटाते हैं। तो टेल मी, 3x को ऐसे ही रहने देते हैं। हमेशा मानिए आप एक एक स्टेप में एक एक चीज को शिफ्ट करना, इससे आपका क्वेश्चन भी नो लंबा जाएगा, ठीक है? तो 7/3 टाइम्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे 4 जो है वो डिवाइड हो रहा है,
तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा. डू यू अग्री? Yes. ओके, अभी इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3x क्या हो जाएगा? 7 और 4 28 और बाई 3. Yes. क्लियर? ओके, अभी हमारे पास 3 एक्स्ट्रा x के साथ, हमें तो x चाहिए. 28/3 तो अपनी जगह पे 28. रहेगा फर्स्ट, और ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है. सो ये यहाँ पे डिवाइड होगा. डिवाइड मीनिंग क्या माना कि वो न्यूमरेटर में नहीं रह के डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ठीक है, ओके. और यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन साइन ही रहेगा, क्योंकि 3 का तो ऑलरेडी डिवीजन में चला गया, बाकी वो उससे कनेक्टेड मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ रहेगा. ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Yes. x? 28 into 1 is 28 and 3 into 3 is 9. That is your answer. 28/9. क्लियर? समझ में आया ये माने? ठीक है. अभी आई टेल यू वन थिंग कि ट्रिग्नोमेट्री का आई गेस सबसे ज्यादा कवरेज होता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो फॉर्मूलाज याद होने बहुत जरूरी है. अभी ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू हैव द क्लास फॉर लॉन्गर, तो आई डू वन थिंग, मैं ये सारे फॉर्मूलाज लिख देती हूँ, लाइक लेट्स जस्ट डिस्कस ऑल्सो, और आप अभी ये फॉर्मूला याद करना. विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. ओके, ये फॉर्मूला लिख कर, और आप उस 10 मिनट्स में ऑफ कोर्स आपको कुछ इफ यू वांट टू ईट समथिंग यू कैन ईट, एंड देन वो खाते खाते यू कैन जस्ट लर्न द फॉर्मूला आल्सो. मैं ये फॉर्मूलाज आपसे पूछूंगी फिर. ठीक है, so 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज. राइट? यू रिमेम्बर मान्या साइन का क्या था फॉर्मूला? बिकॉज वो ट्रिक जो मैंने बताया था फॉर्मूलाज लिखने का. सो टेल Yes. so tell me the Sine sign. will be 1. Sin 0 will be 1. Sine 0 degree will be 1. You sure? Yes. Sin 0 was 0. No. Right? Yes. 0 का 0 ही था. Okay, next. Sin 30. Sine will be root 2 upon 1. No. Sin 30 is half. 1 upon 2. It's okay, no problem. अभी आप याद करना, माना कि 2 दिन बाद आपको ये टेबल लिखना होगा एग्जाम में. ठीक है, 1/2. Sin 45 क्या था? 1 upon root 2. 1/√2. Sin 60 क्या था? Root 2. √3/2. राइट? और 90 था 1. ठीक है, आप इस तरीके से अगर आप ये सीक्वेंस सही से लिख दोगे, मान्य साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट, एग्जैक्टली ये सीक्वेंस, इसमें अगर कोई चेंजेस आपने किया तो वो सारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये सीक्वेंस बिल्कुल याद रहना चाहिए. और वो एंगल भी 0, 30, 45, 60, 90 होंगे. और उसके बाद आप ऐसे भी याद रख सकते हो 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1. अभी कॉस का तो बहुत सिंपल होगा फाइंड करना. टेल मी क्या होगा? कॉस 0, वो ट्रिक क्या? 1. Cos 30. Root 3 upon 2. That's correct. 45. 1 upon 1 root 2. √2. Okay. And cos 60. 1 upon root 2. 1 upon 2. 1/2. And cos 90 will be C. साइन का सिर्फ याद रखने से cos का पूरा हमने कर लिया डायरेक्टली. tan का भी हमें याद रखना था. तो डू यू रिमेम्बर tan 0 क्या था? जीरो. और tan 30 हमने अभी क्वेश्चन किया, राइट? tan 30 था 1/√3. करेक्ट माने? Yes. थोड़ा आप अपने ये से भी याद रखना कि यहाँ पे 0 था तो ये भी 0 है. इस तरीके से आप खुद का कुछ भी अपना ट्रिक भी रख सकते हो. ओके, ऑलराइट. सो tan 30 तो 1/√, अभी हमने सॉल्व किया. tan 45 वेरी फेमस, 1 होता है tan 45. tan 60 क्या होगा? ये 1/√3 का उल्टा है, एग्जैक्टली √3.
और tan 90 ये तो काफी अलग वैल्यू था, you remember? Yes. Sleeping 8 meaning infinite, infinity you can say. अभी मान्या इतना करने के बाद ऑफ कोर्स आपके पास पूरा टेबल बना सकते हो आप. टेल मी cosec का वैल्यू. Cosec Infinity. infinity. Cosec 30. √3. हाँ cosec 30 sin 30 का उल्टा मान्या sin का उल्टा होता है cosec. So, जो भी साइन में लिखा है उसको सबको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे बस. So 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1 which is same as 2 only, right? Yes. What is cosec 45? (1/√2 का reciprocal √2/1 which is same as √2 only, right? और फिर Yes. cosec 60 हो जाएगा sin 60 का उल्टा which is 2/√3, right मान्या? Yes. और cosec 90 जो है वो हो जाएगा 1 का उल्टा which is 1. ठीक है, 1 का उल्टा क्या होगा 1 का उल्टा होगा 1/1. वो 1/1 तो 1 ही होता है. अभी Yes. वी आर गोइंग टू डू फॉर sec. sec किसका है उल्टा cos का रेसिप्रोकल. टेल मी क्या होगा आंसर. सब कुछ स्क्रीन पे है मान्या, जैसे आपको रेसिप्रोकल करके बताना है. 1. वेरी गुड. 2/√3 दैट्स करेक्ट. 2/√3. upon √2. √2. वेरी गुड. 2. 2. Infinity. infinity. नेक्स्ट लास्ट ऑफ कोर्स tan का उल्टा क्या होगा. Not defined. नॉट डिफाइंड. √3. √3. 1. 1. 1/√3. 1/√3. 0. 0. So मान्या ये आप याद रखोगे एग्जाम के Yes. लिए. ये अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हो. आप जहां भी ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन देखना cosec 30 sin 45 cot 30, दैट मीन्स यू शुड बी नोइंग दिस टेबल. बस ये फॉर्मूलाज पुट करने होंगे और सिंप्लीफाई करना होगा. दैट्स ठीक है मान्या. सो नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes और फिर हम वापस से क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. ऑल राइट. Yes. Okay. So I will remove few of them, not all, and I will check whether you remember them or not. Okay, let's start. So let's just fill all the blanks. So first is sin 45. You remember what was sin 45? √2. Was it not 1/√2? Yes, 1/√2. 1/√2. It's okay. Next, cos 0. 1. 1. Cos 90. No. Infinity. No, 0. 0. Yes. Okay. Next. यहाँ से तो मैंने कुछ erase ही नहीं किया. Okay. Cosec 30. Cosec 30. I think 2. Cosec 30 is 2. Very good. Okay. यहाँ पे ये जो 1 है वो erase हो गया by mistake. Okay. So that's correct. Now sec 0. Sec 0. Cos का उल्टा 1. Very good. Sec 30. 2/√3. Right. Okay. Next. Sec 45.
root 2. Root 2, that's correct. And sec 90? Sec 90. Cos 90 का उल्टा, 0 का उल्टा, Infinity. infinity. ठीक है, मान्या आप ये प्रैक्टिस करना. ओके, देयर इज अ रीजन आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन टू रिमेम्बर दिस, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ इस पे ही डिपेंडेंट है. अगर आपको ये आता रहेगा तो यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने अभी कुछ दिनों पहले ही सॉल्व किया था ऑन रूट्स, zeros, right? So let's say that we have a polynomial x square plus 5x plus 1. ठीक है, ये हमारे पास एक polynomial है जिसमें हमारे पास zeros जो है वो अल्फा और बीटा दिया हुआ है. अल्फा और बीटा जो है वो zeros है. So we have to find the value of alpha square plus beta square. और दूसरा है we have to find out the value of alpha inverse plus beta inverse. Do not get scared by looking at what is this inverse. Okay. Alpha inverse is same as 1 upon alpha and beta inverse is same as 1 upon beta. ठीक है मान्या? 1 upon alpha को हम also alpha inverse लिख सकते हैं और 1 upon beta को हम लिख सकते हैं beta inverse. So आप ये क्वेश्चन मान्या साथ में सॉल्व करो और आप भी ये वाला क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख लो, क्योंकि इन केस ये क्वेश्चन आ जाए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व, राइट? सो पहले तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है. लेट्स राइट डाउन द पॉलिनोमियल फर्स्ट. x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1. तो यू नो कि हम इसको किस वे में सॉल्व कर सकते हैं. x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1. यू रिमेम्बर कि अगर हमारे पास रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स का हमने एक फॉर्मूला किया था. वो फॉर्मूला क्या था, यू रिमेम्बर? माइनस बी बाई ए, राइट? सम ऑफ द रूट्स का हमने एक फॉर्मूला किया था माइनस बी बाई ए, राइट? ओके, नाउ टेल मी सम ऑफ द रूट्स, मतलब रूट क्या है, अल्फा और बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए है. इस इक्वेशन से कैन यू टेल मी व्हाट इज बी एंड व्हाट इज ए? यू रिमेम्बर हमारे पास ये होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो बी क्या है, 5 है, ए क्या है, 1 है, और सी क्या है, 1 है. सो अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस फॉर्मूला में, और बी जो है वो 5 और ए जो है वो 1. सो डू वी नॉट हैव अल्फा प्लस बीटा माइनस 5? मान्या ये क्लियर, समझ आया? ओके. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, राइट? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन केस ये सेम ही क्वेश्चन आ जाता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व. तो आप याद रखना कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है. अभी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आल्सो, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. टेल मी फॉर्मूला क्या था, c बाई ए. ये फॉर्मूला याद आ रहा है? c बाई ए माइनस बाई ए. ओके, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाई ए. c क्या है, 1. a क्या है, 1 ही. सो 1 बाई 1, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 बाई 1 मैं यही पे डायरेक्ट लिख देती हूँ 1. सो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आया है -5 और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आया है 1. पहले क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ये हमें फाइंड करना है. तो हम स्टार्ट मान्या ऐसे करेंगे. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. कैसे? ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से. यू रिमेम्बर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ पे ए और बी के जगह पे जस्ट अल्फा और बीटा है, राइट? तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 अल्फा बीटा. माना क्लियर? अभी कैन यू सी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास -5. तो कैन आई नॉट पुट हियर -5 और उसका स्क्वायर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमें फाइंड ही करना है. तो विल कीप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एज इट इज प्लस 2 अल्फा बीटा. सो 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या था, 1. सो ये तो 1 ही होगा, 2 into 1. सो डोंट यू थिंक हमारे पास आंसर आ गया ऑलमोस्ट. -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25. सो 25 इज इक्वल टू
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। हमें फाइंड क्या करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे और 25 भी वहीं पे रहेगा। 2 को शिफ्ट किया तो इट विल बिकम -2। तो क्या आ गया वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का? इज इट नॉट 23? हो गया, आंसर आ गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 23। ये क्लियर समझ में आया मान्या क्या क्या हुआ इसमें? Yes. ठीक है, आपने ये वाला क्वेश्चन सोल्यूशन साथ में लिखा? Yes. ओके, अभी नेक्स्ट फाइंड करना हमारे पास अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ सो दैट आप इसको देख भी सको साथ ही साथ। सो हमें फाइंड करना है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स की वैल्यू। अभी मैंने जस्ट बताया कि अल्फा इनवर्स जो है वो हम 1/अल्फा भी लिख सकते हैं, राइट? और जो बीटा इनवर्स है उसको हम 1/बीटा लिख सकते हैं। अभी अगर मान्या यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इसका, सो विल इट बिकम अल्फा बीटा? Yes. ठीक है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। ये समझ में आया कैसे? Yes. अगर अल्फा बीटा एलसीएम हुआ तो अल्फा यहाँ पे ऑलरेडी है तो बीटा एक्स्ट्रा है, तो बीटा 1 से मल्टीप्लाई होके बीटा हो गया, प्लस यहाँ पे बीटा ऑलरेडी है, अल्फा एक्स्ट्रा तो अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होके अल्फा हो गया ना। बीटा प्लस अल्फा, राइट, की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास। बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा, यू नो सेम थिंग होता है। उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी -5 है, तो हम लिख देंगे -5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी 1 है। हो गया, आंसर डन। -5 इज द आंसर। दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया मान्या। क्लियर समझ में आया ये? Yes. ठीक है, अगर ये क्लियर समझ में आया तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट रख लो या तो फिर आपने अगर पूरा लिख लिया है तो गुड। मैं ये पूरा क्वेश्चन दिखाती हूँ बिकॉज ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, ओके, इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन। और सिचुएशन ये है कि माने आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो, या तो एलिमिनेशन, या तो सब्स्टिट्यूशन, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यू कैन चूज द मेथड ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है, शैल वी गो? Yes. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is 2x plus 3y. Oh, okay, 1 second. Okay, so it is 2x plus 3y is equal to 11. और जो दूसरा है वो है 2x minus 4y is equal to -24. क्वेश्चन है ये, सॉल्व क्या करना है? x और y, और यू कैन से फाइंड करना है x एंड y। कैन यू स्टार्ट? कैसे सॉल्व? फर्स्ट टेल मी माने कौन सा मेथड यूज करना है आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में आई एम टेलिंग यू आप कोई भी एक मेथड यूज करो। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? ओके, सो लेट्स डू। सो पहले इक्वेशन को हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 11, और दूसरे को भी लिख लेते हैं 2x minus 4y इज इक्वल टू -20। नाउ टेल मी, हमें एक को तो कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे तो कोई एक टर्म कैंसिल हो जाएगा? We will change the sign first. वेरी गुड, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। ओके, तो अगर हम माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस है वो जाएगा प्लस, और ये माइनस जो हो जाएगा वो प्लस। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो +2x है और ये जो -2x है वो कैंसिल। नाउ टेल मी मान्या, +3y + 4y, व्हाट इज द आंसर? तो ये कितना सिंपली सॉल्व हो जाएगा? 7y, राइट? Yes. 7y, ओके। नाउ टेल मी व्हाट इज 11 + 24? अब माइनस नहीं देखना है बिकॉज ऑफ कोर्स साइन चेंज हो गया। सो टेल मी व्हाट इज 11 + 24? 35. Very good. So 7y is equal to 35. So can you tell me what is the value of y? अगर 7y जो है वो 35 by 35. subtract or 35. do we 35 No. upon 7, sorry.
So what is the value of y? It is 5 and we have got the value of y. But x नहीं मिला है, right? तो x कैसे find करेंगे? किसी एक equation में put करके. Let's put it in this equation. So you can write down that 2x plus 3y जो है वो 11 दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, y already आ गया है 5. So will it not become 3 times 5 is equal to 11? Now you solve this, Manya, and tell me the next step. टू एक्स एज इट इज प्लस 3 times 5 हो जाएगा 15. ये स्टेप क्लियर है माने कैसे किया मैंने? जस्ट मैंने एक इक्वेशन ले लिया कोई भी एक, और उसमें से ही ऑफ कोर्स हम y की वैल्यू हमने पुट किया और वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, राइट? सो 2x plus 15 is equal to 11. इसके बाद 2x will be remain same. 2x will remain same. Equal 11 minus 15. 11 minus 15. So what is the answer of 11 minus 15? I think 4. 4 or minus 4? Minus 4. Minus 4. So what's the Upon answer? x equal minus 4 upon 2. Which is Minus 2. That's correct. So the answer we have got x is minus 2 and y is 5. 5. Right? Clear? Manya, no doubt in any of the questions that we have done so far? It's clear. It's clear. Okay. So now we can go to the next question. So the next question is actually a formula-based question. So for that, I just want to ask you a formula. Let me first write out that there is a cuboid and the length of the cuboid is given 12 meter. The breadth of the cuboid is given 8 meter and the height of the cuboid is given 10 meters. Okay. Question is, find the surface area of a cuboid. Manya, याद है formula surface area of cuboid? सरफेस एरिया बोल रहा है तो मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं फाइंड करना है. कर्व्ड सरफेस एरिया के you will get the specific, like it will be specifically mentioned that you have to find out the curved surface area only. Tell me. फॉर्मूला याद नहीं मान्य? इट्स ओके, मैं रिमाइंड कराती हूँ, बट 1 upon सारे 5. no. I'll write down. So first of all, surface area find करना है, मतलब total surface area ही find करना है. So what is total surface area of आप आज रात को मान्या अगर आप after this class अगर if you are not going to sleep, आप सारे formulas revise कर लो क्योंकि अब बहुत कम दिन है, right? तो एक बार formulas सारे revise कर लो. कल मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सारे formulas आपसे पूछूंगी, revise कर लेंगे, ठीक है? Okay. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 times L into B plus B into H plus H into L. याद आया फॉर्मूला? Yes. ये फॉर्मूला था. ओके. 2 L B का मतलब क्या होता है? L into B. L क्या है? 12. सो 12 into B. B क्या है? 8 प्लस B times H. B क्या है? 8. H क्या है? 10. क्लियर हो रहा है माने? Yes. नेक्स्ट H क्या है? 10. L क्या है? 12. बस इसको सिंप्लीफाई करना है. Can you tell me what is 12 times 8? $96. 96. What is 8 times 10? 80. What is 10 times 12? 120. Now what is the answer? इसको add बहुत simply कर सकते हैं. 2 times, यहाँ पे times होगा of course. 120 plus 80 हो गया 200 and 200 plus 96 हो जाएगा 296. So आपको multiply करना है 2 with 296. So let's multiply.
This will become 6 times 2 12, 2 carry over 1, 9 times 2 18 plus 1 19, 9 carry over 1, 2 times 2 is 4 plus 1 5. So what is the answer? It's 592. ये area है, right? So area में हम लिखते हैं square meter, and that's the answer. Clear, Manu? Yes. Okay, now let's go to the next question. I can see is on AP. So the next question is here. You are having the nth term of an AP given by 2n minus 3. And the question is, find the common difference. Any idea how can we solve this? हमारे पास सिर्फ nth term दिया हुआ है, उसका जनरल फॉर्म, और वो है an जो है nth term जो है उसको हम फाइंड कर सकते हैं 2n minus 3 से. Find the common difference from this. कैसे सॉल्व होगा? Like, what do you think? What you will be doing? Okay, I'll help you. Don't worry. So हमारे पास given क्या है मान्या? nth term given है जो कि है 2n minus 3, right? So यहाँ पे जो n है वहां पे अगर हमने n के जगह पे 1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा? a1 is equal to 2 into 1 minus 3. ये समझ में आया मान्या? Yes. इससे हमारा क्या हो जाएगा? पहला टर्म मिल जाएगा. a1 क्या हो जाएगा? 2 into 1 is 2, 2 minus 3 is -1. So हमारा a1 मिल गया. ऐसे ही हम n is equal to 2 पुट करके सेकेंड टर्म भी निकाल लेंगे. So what will be a2? 2 into 2, right? इस 2n में n की जगह पे 2 पुट किया -3. What is 2 into 2? 4. 4 minus 3 1. अभी इफ यू वांट आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हो क्योंकि अब तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास निकल ही जाएगा फॉर्मूला से. क्या फॉर्मूला है? a2 minus a1. a2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस a1 की वैल्यू क्या है? -1. So क्या आंसर आया? 1 minus into minus is plus and then 1. What is 1 plus 1? 2. That's the common difference. Done. Take a screenshot of this, Manya. Okay, ये सारे questions 1 mark में आएंगे. Not even for 2 marks. 1 mark में आ सकता है. Okay? Okay. ठीक है? Okay. Let's go to the next question. Next question है quadratic equation पे. And it is, find the zeros of this polynomial. 2x square minus 7x plus 6. एंड देन इसके बाद हमें ये भी करना है कि हमें इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करना है और सम ऑफ द जीरोस भी फाइंड करना है. ठीक है? तो अगर मानना क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो या फिर पॉलिनोमियल दिया हो एंड इफ द क्वेश्चन इज सेइंग कि फाइंड द सम ऑफ द जीरोस, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लोगे. क्या फॉर्मूला यूज करोगे? सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी बाई ए, राइट? तो माइनस बी क्या है? -7 है, तो it will become -7. a क्या है? 2 है. So what is the answer? Minus minus plus 7/2. Sum of the zeros आ गया 7/2. ये कब करेंगे? जब हमारे पास क्वेश्चन होगा that this is your quadratic equation or polynomial, find the sum of the zeros, find the product of the zeros. तो आप ये डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है? नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था? c बाई ए. c क्या है यहाँ पे? 6. a क्या है यहाँ पे? 2. आर यू अंडरस्टैंडिंग? c मैंने 6 कैसे लिखा, a2 कैसे लिखा? यहाँ पे c 6 है और a2 है. कैसे a b c कर रहे हैं माने, ये आप हमेशा याद रखना. स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है. इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके वी कैन से c जो है 6 है, b जो है वो -7 है और a जो है वो 2. तो 6/2 को तो ऑफकोर्स हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो आंसर इज 3. दैट्स इट. ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ. अब मैं यही वाला सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके एक और क्वेश्चन बनाऊंगी और क्वेश्चन होगा कि इसमें हमें जीरोस निकालना है. मतलब इफ आई एम राइटिंग 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो इसमें हमें इसको जस्ट सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करते थे? 2 फॉर्मूलाज थे हमारे पास. वन वाज फाइंड द मिडिल टर्म स्प्लिट और दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. लेट्स सॉल्व दिस यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट.
सो मिडिल टर्म स्प्लिट का रूल क्या था कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा 6 को और 2 को, तो आंसर क्या आया 12। अब 12 के लिए यू टेल मी एनी टू नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। 4 and 3, 4 and 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, और 4 और 3 को अगर हमने इस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा -7 भी आ रहा है। डन, वी आर डन, हमारे पास आंसर हो गया। यू विल राइट ऑन, ये माने समझ में आया, क्लियर है ये? नहीं? Yes. अगर क्लियर नहीं तो मैं एक बार फिर से समझा सकती हूँ। Yes. नो वरी, क्लियर है? ओके, सो ये आप मिडिल टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चंस थोड़ा और प्रैक्टिस करना। 2x स्क्वायर माइनस 7x को हम लिख सकते हैं -4x - 3x, क्योंकि -7x तभी आएगा, एंड +6 एज इट इज इक्वल टू 0। अभी फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन क्या निकालेंगे 2x, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x, बिकॉज x स्क्वायर है वो, और -4x में से 2x बाहर है तो ऑफ कोर्स 2 बचा, बिकॉज वो हमें 4x दे देगा वापस, माइनस यहां से 3 कॉमन निकालेंगे। 3 कॉमन निकालने के बाद व्हाट इज लेफ्ट, x माइनस, क्योंकि माइनस साइन भी कॉमन है और यहाँ प्लस था तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, राइट? सो 2 एंड देन 0, और एक और ट्रिक भी था कि जो भी यहाँ पे है वही यहाँ भी आता है। सो आंसर क्या हो गया 2x - 3 x - 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो टर्म्स के प्रोडक्ट 0 आ गए। इसका मतलब क्या होता है, या तो पहला टर्म 0 के इक्वल होगा, या तो दैट मीन्स और x - 2 will be equal to 0. So what is the value of x from here? Will it not become 2x is equal to 0 plus 3? So what is the answer? 2x will become 0 plus 3 is nothing but 3 only. So 2x will be 3. So what is the value of x? X will become 3/2. हमारे पास x की पहली वैल्यू मिल गई। क्लियर है मैम? Yes. ठीक है, ओके। x - 2 इज इक्वल टू 0 से क्या मिला, x इज इक्वल टू 0 प्लस 2। सो क्या वैल्यू होगी, x is equal to 2, and that's it. This is the value. Understood, Manu? Yes. Okay. Let's do the next question. So next question may we can just do it in a very simple way. So यहाँ पे question है, if sin A is, okay, if sin A is 1/2, find the value of cos A. It's a very simple question, 1 mark question. So अगर साइन ए की वैल्यू, सी हमारे पास बहुत सारे वेज है मान्य इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं आपको सबसे सिंपल बता रही हूँ। साइन ए जो है वो हाफ है। कैन यू टेल मी कि साइन की कौन से एंगल के लिए वैल्यू हाफ होती है? साइन 0 के लिए, साइन 30 के लिए, साइन 45 के लिए, साइन 60 के लिए, साइन 90 के लिए? साइन 30 के लिए, राइट? अभी इसके बाद क्या होता है, साइन साइन को हम मनी वन कैंसिल कर सकते हैं, एंड ए की वैल्यू क्या आ गई 30। फाइंड क्या करना है हमें, कॉस ए। तो यहां से कैन वी नॉट फाइंड आउट कॉस ए लाइक दिस, कॉस और ए की वैल्यू 30, सो कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। मिल गया, डन। दैट इज वाई दिस वाज जस्ट अ 1 mark क्वेश्चन। क्लियर माने? Yes. Okay.